Good morning, students. Now we have already studied law of chemical combination. First one was law of conservation of mass, and second is law of constant proportion. Okay. Now law of conservation of mass, you already know what is law of conservation of mass. कि in a reaction, in a chemical reaction, mass जो है वो destroy भी नहीं होता है, ना ही mass create होता है. That means कि reaction के पहले और reaction के बाद जो टोटल मास है ओके वो हमेशा सेम रहता है. एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स कि कोई भी एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है, कोई भी कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन है, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है H2O है, चाहे वो वाटर कहाँ का भी हो. यस, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay, so that was law of constant proportion. Now we have already studied this law of chemical combination, but in science these all laws they need proof. Now how this is been proved? Okay, now a chemist or physicist known as John Dalton, what he did, he proposed a theory which was then known as Dalton's atomic theory. With this theory, many concepts regarding matter, composition of matter, atoms, and even compounds were better understood. Now, what happened here is, now एक साइंटिस्ट था डाल्टन करके, what he did, he proved these concepts. Okay, डाल्टन ने जो है 6 प्रूफ दिए, 6 उसने एटम के बारे में ऐसे ऐसे प्रूफ दिया. एटम के बारे में उसने 6 पोस्टुलेट्स थे उसके. Okay, we will learn one by one. What are those? Now 6 major postulates of his theory were: first was, he said that all matter is made up of very tiny particles called atoms. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Third one was, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Fourth is, atoms of different elements have different masses and chemical properties. And fifth one was, atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. And last one, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. So, these all were the 6 postulates given by Dalton. One by one he proved this. Okay, first है कि atoms are made up of very tiny particles. अब atoms, what are atoms? They are nothing but smallest particle of any element. Okay, smallest particle of element. Now consider this reaction: element A plus element B gives compound C. Now here यहाँ पे they have shown कि any atom is made up of tiny particles. Now let's take the example of element A. Now element A बना हुआ है एकदम smallest particle से, जिसको हम atom बोलेंगे. ओके, सिमिलरली एलिमेंट बी भी छोटे एटम से बना है. ओके, एंड वन एटम प्लस अनदर एटम गिव्स दी थर्ड कंपाउंड. एक एटम को दूसरे एटम से जब मिलाते हैं तो हमको थर्ड कंपाउंड मिलता है. सेकेंड इज, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो है मतलब तो वो इनडिविजिबल है. इनडिविजिबल मतलब वो पहले और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकती. दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ एनी एलिमेंट. ओके, एंड वो दोनों को कंबाइन करने पर हमें एक कंपाउंड मिलता है. और इस रिएक्शन में कोई भी ना तो एटम बाहर से क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है. ठीक है. नाउ एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी गिव्स द कंपाउंड सी. ओके, नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड. नया एटम कोई भी फॉर्म नहीं हुआ है. जो भी हमें कंपाउंड मिला है वो दोनों को मिलाकर मिला है. दैट इज कंपाउंड सी. एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज.
कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम, जैसे कि वी कंसिडर्ड य एलिमेंट सी, एलिमेंट ए, अब यहाँ पे यू कैन सी दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। तो एक एलिमेंट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। ओके, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ की उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम रहेगी। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट सेम एटम्स हैव आइडेंटिकल मास। ओके, मास जो है वो भी सेम होगा एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम रहेगी of element A. Now the fourth one was atoms of different elements have different masses and chemical properties. Obviously दो atoms के जो elements है, जो atoms है वो different हो गए। For example element A और element B में you can see the difference. ओके, दोनों की atoms जो है, दोनों की जो chemical properties जो है वो different रहेगी। कोई भी दो elements हम देख लेते हैं, जैसे कि we can say iron एंड कॉपर, दो बोथ द एलिमेंट्स, बट दोनों की जो प्रॉपर्टी है, दोनों का कलर है, दोनों का टेक्सचर है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो दैट इज़ द प्रूफ दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, डिफरेंट मासेस एंड इवन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, नाउ we'll come to the fifth one. Atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. Small whole numbers means कि एटम हमेशा होल नंबर्स में ही कंबाइन होता है, 1 2 3 4, नॉट 0.5 0.3 0.2। ओके, हमेशा वो होल नंबर्स में ही फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल वी कैन से एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी में जो एलिमेंट्स ए और बी के दिख रहे हैं तुम्हें रिएक्शन हुआ है एंड दिस एलिमेंट्स आर बीन कंबाइंड। तो वन एटम दिया हुआ है ऑफ एलिमेंट बी एंड टू एटम्स ऑफ एलिमेंट ए, तो ये दैट इज वन इज अ होल नंबर एंड टू इज अ होल नंबर। सिमिलरली वी कैन सी ऑफ यहाँ पे 1/3 या 1/4 नहीं होता है। वाटर में भी हम देखेंगे H2O, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 1 and 2 ऑल्सो आर होल नंबर। सिमिलरली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा रिएक्शन जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो हमेशा होल नंबर्स में ही हमें मिलेंगे, हाफ या 1/4 या 3/4 ऐसे कभी भी हमें रिएक्शन या कंपाउंड हमें नहीं मिलेगा। Now the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. This was proved earlier कि कोई भी कंपाउंड का रेशियो जो है एलिमेंट्स का, फॉर एग्जांपल वाटर इट इज़ H2O, उसमें वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एनीवेयर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू गो, यहाँ पे जो वाटर का केमिकल फॉर्मुलेशन है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी कहीं और का है तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम ही उसमें रहेगा। सिमिलरली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. So these were the 6 postulates of Dalton, John Dalton. He proposed the 6 postulate and he even proved it. Alright. So here we have an example of carbon monoxide and ammonia. Now, so these are the 6 postulates.